Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher, and today class we discuss chapter number 15, all question answer, air around us. Okay, question number 1, what is the composition of air? Okay, and air is mixture of nitrogen, oxygen and carbon dioxide, water vapor and a few other gases. Some dust particle may also be present in it. तो जो air है उसके अंदर क्या क्या composition है? Nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and a few other gases. Okay, and some dust particle also present in air. Now we move to a second question. Which gas is important in the atmosphere is essential for respiration? That is oxygen. Which gas is important essential for respiration? Oxygen. Okay, next one we move to a third question. How will you show that air support burning? आप कौन से प्रैक्टिकल से शो कर सकते हो कि एयर सपोर्ट करती है किसको बर्निंग करने में? So take a small burning candle, cover the burning candle with a glass jar. After a few minutes the candle is extinct, guys. आप एक burning candle लेते हैं, then you put on the candle on a glass jar. After few minutes candle unlit हो जाती है, extinct guys हो जाती है. As the supply of air is stopped, हमने glass को ऊपर से cover करके क्या किया है, जो supply है air का उसको stop कर दिया है. ओके, तो हम जैसे ही supply of air को stop करते हैं तो glass jar जो है burning candle जो है burn होना stop कर देती है. This experiment prove that air support burning. Is it okay? Now question number 4, how will you show that air is dissolved in water? आप कैसे शो कर सकते हो कि जो एयर है वो डिसॉल्व होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर. ओके, टेक सम वाटर इन अ ग्लास वेसल और बीकर. वेसल मींस बर्तन होता है. एक ग्लास का ग्लास मींस कांच का बना हुआ है, कोई भी बीकर वगैरह कोई भी जग लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम बीकर बोलते हैं. ओके, वेसल मींस बर्तन. ओके, तो आप कोई भी ग्लास वेसल और मे बी बीकर आप ले सकते हो. हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड. ट्राइपॉड स्टैंड दिस वन. इसमें ना आपको दिखता हो यहाँ पर टू लेग ही दिखाई दे रहे हैं, एक लेग और होता है इसके अंदर, तो ऐसे स्टैंड को हम बोलते हैं ट्राइपॉड स्टैंड. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. Okay, take some water in a glass vessel or a beaker. Heat it slowly on a tripod stand. Before the water begin to boil, look carefully at the inner surface of the vessel. You will see tiny bubbles on the inside. On heating, air dissolved in water escape in the form of bubbles. आप जब इसको इस vessel को बहुत clearly properly देखते हैं तो we will see tiny bubble inside this vessel. On heating, अगर हम heat करते रहते हैं तो air dissolve in water. air dissolve हो जाती है किसके अंदर? water में. और escape जो dissolve air है वो escape हो जाती है in the form of bubbles. bubbles की form. Okay, now next one is question number 5. Why does a lump of cotton wool shrink in water? जो cotton wool है, normally जो cotton होती है आपको बहुत fluffy सी दिखाई देगी, और जैसे आप उसको water में dip कर देंगे ना वो एकदम पतली सी और वैसे change हो जाएगी. अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ तो आप उसको देख सकते हो. ठीक है, so lump of cotton wool has air among gaps on cotton fiber. जो cotton wool का जो lump होता है उसके अंदर बहुत सारी स्पेस होती है जहां पर एयर होती है, इसी वजह से वो थोड़ी फूली सी स्पॉन्जी लाइक स्ट्रक्चर उसकी दिखाई देती है. ओके, और व्हेन वाटर रिप्लेस द एयर, और जैसे ही हम उसको कॉटन लम्प को वाटर के अंदर डिप करते हैं तो जितनी भी एयर स्पेस है ना वाटर के, उसकी जगह कौन ले लेता है? वाटर ले लेता है, और एयर को उन गैप्स को रिफिल कर जो की हुई होती है उनको हटा देता है. सो द कॉटन लम्प बिकम हैवी. जो कॉटन लम्प है वो थोड़ा हैवी हो जाता है. ऑल्सो श्रिंक ड्यू टू अ रिमूवल ऑफ एयर गैप्स, क्योंकि उसके बीच में जो एयर रिमूवल होता है उनको एयर गैप्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई वो जो कॉटन वूल है, वो कॉटन वूल का जो लंप है वो श्रिंक हो जाता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज. जो अर्थ के अराउंड में जो लेयर है अर्थ की उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. क्या बोलेंगे बेटा? एटमॉस्फेयर. ओके, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट टू मेक देयर food is carbon dioxide. What is this? Carbon dioxide. Okay, next one is question number 8. List 5 activities that are possible due to presence of air. हमें 5 activities बतानी है जो air की presence में ही हो सकती हैं. तो yes, सिंपल फिरकी जो है वो वर्क कैसे करेगी? एयर की प्रेजेंस में. वेदर क्लॉक
and to breathe for survival, for burning of substance and for photosynthesis. इन सब चीजों के लिए रिक्वायर है क्या बेटा? एयर. ओके. Question number 9. How do plants and animals help each other in exchange of gases in the atmosphere? Animal and plant use oxygen from air during respiration and release carbon dioxide gas in air, but green plant also release oxygen. ये कह रहे हैं plant और animals जो हैं सॉरी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस करके एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, है ना? तो एनिमल एंड प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन एयर. जो एनिमल है वो प्लांट्स के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ऑक्सीजन रिलीज हुई है उससे ऑक्सीजन जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं और उस रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या रिलीज करते हैं एनिमल्स? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं. बट ग्रीन प्लांट्स also release oxygen gas but using carbon dioxide during photosynthesis. और जो plants होते हैं वो इस carbon dioxide gas को use करते हैं during photosynthesis for making oxygen gas and food. Thus we can say that animal and plants they help each other in exchange of gases. Gases को exchange करने में help करता है. Okay. Now next one is that's all about the NCERT question. Some extra questions will be there. First one is what will happen if the amount of oxygen is increased in the air? So air will become more combustible. जो air है वो combustible है हो जाएगी. अगर क्या हो ऑक्सीजन की अमाउंट एयर के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा 21% से मोर देन बढ़ जाए क्या होगा? तो एयर क्या हो जाएगी? कंबस्टेबल हो जाएगी. सो मेनी सब्सटेंसेस में गो फास्ट ऑक्सीडेशन और बहुत सारे सब्सटेंस जो है फास्ट ऑक्सीडेशन पे चले जाएंगे. ओके. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डू पुलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट अ क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वियर अ मास्क? आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होता है जहां पर बहुत क्राउडेड एरिया है जो रेगुलर ट्रैफिक सिग्नल रहता है वहां पर जो पुलिसमैन होते हैं वो हमेशा अपने ऊपर अपने माउथ पर एक मास्क वियर करके रखते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ओके. तो वियरिंग अ मास्क एट कवर्ड एक सेकेंड. Wearing a mask at a crowded crossing saves the policeman from harmful smoke and dust particles. वो बहुत जो crowded area है या गाड़ी वगैरह वहां पर बहुत ज्यादा है तो व्हीकल से जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल एमिट होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए विच में एंटर देयर नोज जो एंटर नोज के थ्रू एंटर हो सकता है मे बी उनको उससे प्रोटेक्ट होने के लिए जो पुलिसमैन है वो वियर करते हैं क्या? Policemen wear a mask. Okay. Now next one is question number 3. What is the importance of oxygen in daily life? Oxygen play a very important role in our daily life. Some of these are. First one is ozone. It provided a blanket in the atmosphere which protect us from harmful ultraviolet ray emitted by the sun. जो ओजोन लेयर है उससे वो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रे से हमें प्रोटेक्ट करती है. ओके. सेकंड वन है इट इज यूज्ड फॉर ब्रीथिंग. ब्रीथिंग में हेल्प करता है एंड एज अ ब्रीथिंग एड इन हॉस्पिटल, एरोप्लेन, बाय डीप सी डाइवर एंड एस्ट्रोनॉट्स. और उनके ये सब लोग भी हॉस्पिटल्स में जो किसी पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तब ऑक्सीजन दी जाती है. एरोप्लेन के अंदर यूज की जाती है. जो डाइवर्स हैं डीप सी के अंदर जा रहे हैं या एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अपने साथ में कैरी करते हैं ऑक्सीजन cylinder. Okay. Now next one is question number 4. Why do earthworm come out of the soil during heavy rains? When it rain heavily, जब बारिश होती है बहुत तेज, water fill up all spaces occupied by the air in the soil. जो वाटर है वो फिल हो जाता है बाकी स्पेस के अंदर जहां पर एयर है सॉइल के बीच में. In such a situation, animal like earthworm need to come out the soil for respiration. और जो animals हैं उनको respiration के लिए ऑक्सीजन वहां से नहीं मिलती है. That's why earthworm come out of the soil during heavy rainfalls. Okay, that's all about this. If you have any doubt, please raise your hand.